So myself, Chaitanya Khatri, I am working as an application engineer in engineering technique. I've been in SolidWorks community from last 4 years. So due to recent COVID-19, there is a current lockdown situation everywhere, which causes a slowdown in the industry's progress. So for that, we have arranged some webinars so people can enhance their skill while interacting and connecting with the SolidWorks people. So stay at home and be safe. So in today's webinar, we will have some quick look on what are the new features included in the SolidWorks 2020, which enhance the heavy equipment or the large assemblies handling capacity. So today's topic will be handling the large assembly, how you can communicate with the other designer or the other department very easily, and some enhancement in the drafting. So first of all, we will start with the large assembly. So in large assembly, I think everyone is aware of the opening modes of the SolidWorks. Like by default, there are three modes of resolved, lightweight, and the LDR mode. So LDR stands for large design review mode. So in SolidWorks 2020 allows you to edit the assembly even in the LDR mode. Previously in an LDR mode, you were only able to view the assembly, do a quick measure, create a walkthrough. But in SolidWorks 2020, you can edit the assembly. Then there is a newly introduced feature, flexible part. It is a most demanded feature by the SolidWorks customers worldwide. And then comes the very effective tool, material search tool. So we will quickly have a look all this in the SolidWorks itself. So I will open the assembly. So as soon as I click the assembly, it gives me new enhanced opening mode UI, like I want to open in the resolved, lightweight, or the large design. So I will select the large design review and enable the edit option over here. So this is my soil crusher assembly by our customer Wormer Equipment, Wormer Corporation. So this actually crush down the big rocks or the soils into the fine particle. So the first section you can see over here is the conveyor belt, then the crusher mechanism, then the powerhouse, wheelbase. So this assembly is a complete around 4,000 parts, and you can see how easily it opens in the LDR mode. So now in SolidWorks 2020 you can insert the components in the LDR mode itself. So I will use the insert component, and also while I move my cursor to the insert component, it shows me what that command will do for the insert component or the mate or the measure tool. So it gives a small animation type of instruction what that tool can do. So this is very good enhancement in user interface. So I will add the assembly. So in LDR mode you can also apply the mates. So let's quickly give some mates.
to this clamp. I think below clamp. And I will use the smart user interface to apply the width made. Now I will add the concentric made to put it in its place. So you can see here my exit conveyor assembly is quickly mated to the main assembly. So most of the panic time for the design engineer is to open a very large assembly, then gives the particular mate, and also opening time is very much big issue because to load all the document in the memory it will take a lot of time. So uh, this thing becomes very much faster in SolidWorks 2020. Along with this, you can also add the toolbox component. You can add the new mates, edit the mates. Okay. So this allows to work faster. Okay. So next enhancement है flexible part. So again so I will मैं ये assembly close कर दूंगा और also ये असेंबली जो भी हमने चेंजेस की है सब असेंबली ऐड की है एग्जिट कन्वेयर असेंबली वो हम सेव भी कर सकते हैं. So it is saved. सेम असेंबली में लाइट वेट मोड में ओपन करूंगा. ओके. सो ये सिर्फ कंपैरिजन पता चलेगा कि एलडीआर मोड में कितना फास्ट काम हो रहा है और नॉर्मल मोड में कितना ओपनिंग टाइम ज़्यादा है. सो हियर आप ऊपर देख सकते हैं जो ओपनिंग टाइम है, ओपनिंग कंपोनेंट टाइम, असेंबली अपडेट टाइम, एक टूल बॉक्स विंडो ओपन हो रही है. सो इट्स स्टिल अभी भी ओपन हो रहा है. सो आपने अगर यहीं पे कंपेयर किया तो अप्रॉक्स ये 40 सेकेंड जितना टाइम लगा इसको ओपन होने में. वो भी अभी पूरी असेंबली मेरी रिजॉल्व मोड में नहीं है, कुछ कंपोनेंट्स अभी भी लाइट वेट मोड में है. सो अगर सारे रिजॉल्व करने जाऊँ तो 1 मिनट के ऊपर चला जाएगा. सो एलडीआर मोड जो है लार्ज डिज़ाइन रिव्यू मोड, उसके हेल्प से आप क्विकली ओपन कर सकते हो और उस असेंबली में एडिटिंग कर सकते हो और वो एडिट्स सेव भी कर सकते हो सारे. सो नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबल कंपोनेंट. सो मैं ये क्रशर असेंबली को ओपन करूँगा.
लगता है कोई पॉपअप विंडो एरर कर रहा है। जस्ट अ मिनट, आई विल क्लोज इट। व्हाट इज द साइज ऑफ द असेंबली फाइल? क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर पार्थिव सा। सर ये सारे क्वेश्चन आंसर हम सेशन के लास्ट में रखेंगे। स्पेक्स फॉर द वर्क स्टेशन या पिपिन सर, ये सारे क्वेश्चन मैं आंसर करूंगा, बट ये सेशन छोटा सा ही है। Just yes, स्पेसिफिकेशन फॉर द वर्क स्टेशन, असेंबली फाइल साइज। सर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं सेशन के एंड में दूंगा। छोटा सा सेशन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ पॉपअप विंडो आ गया, वो विंडो दिख नहीं रहा था, इसलिए मुझे सेशन क्लोज करना पड़ा। ओके, सो ये हमारी असेंबली फुल रिजॉल्व मोड में ओपन हो गई है। यहाँ पे हम ग्राइंडर सब असेंबली ओपन करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने मेट्स दिए हुए फॉर क्रशर मूवमेंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रबर पार्ट है, पैकिंग है, जो हाइड्रोलिक को कवर कर रहा है, वो डायरेक्टली चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली। सो ये एक न्यू एनहांसमेंट है सॉलिडवर्क्स 2020 में, जिसमें पार्ट आपका फ्लेक्सिबल हो सकता है। सो यहाँ पे अगर ये मैं सब असेंबली ओपन कर रहे हैं, सो ये रहा मेरा कंपोनेंट। सो ये एनहांसमेंट काफ़ी यूज़र ने सॉलिडवर्क्स में रिक्वेस्ट किया, तो सॉलिडवर्क्स ने 2020 वर्जन में ये इंट्रोड्यूस किया है कि स्प्रिंग है, फिर पेलोज है, ये सारे कंपोनेंट्स को आप फ्लेक्सिबल क्रिएट कर सकते हैं। सो इसमें सिर्फ एक रेफरेंस प्लेन जो है मूविंग, वो एक्सटर्नल रेफरेंस रहेगा, मतलब उसको हम मूविंग कंपोनेंट के साथ मेट कर देंगे, तो जितना हमारा कंपोनेंट मूव कर रहा है उसके रेफरेंस में वो ज्योमेट्री चेंज कर रहा है। सो यहीं से मैं पार्ट को क्लिक करके मेक पार्ट रिजिड और दी फ्लेक्सिबल कर सकता हूँ। ओके, एंड ये अगर पार्ट हम ओपन करके देखें, सो जस्ट ये एक्सटर्नल रेफरेंस फीचर है जो लिंक कर रहा है मेरी मेन असेंबली के साथ। सो उसी की हेल्प से वो पार्ट एक्सपांड और कोलैप्स हो रहा है। सो क्विकली हम इसको एक मटेरियल दे देते हैं, रबर। सो एक ये नया सर्च टूल सॉलिडवर्क्स 2020 में अवेलेबल है, जहाँ पे आप मटेरियल डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। पहले क्या था कि कोई भी मटेरियल अप्लाई करना है तो उसके टाइप्स में जाओ, एल्यूमिनियम है, स्टील है, फिर उसके अंदर आपको वो ग्रेड का मटेरियल सर्च करना पड़ता है मैन्युअली। यहीं पे डायरेक्ट अब टूल आ गया कि मुझे रबर अप्लाई करना है तो
कौन सा रबर मटेरियल, वो डायरेक्टली यहाँ पे सर्च में आ जाएगा। सीधा यहीं से मैं अप्लाई करके क्लोज कर सकता हूँ। सो ये कुछ अनाउंसमेंट थे असेंबलीज के रिलेटेड, जिसमें LDR मोड में हम असेंबली आप एडिट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल पार्ट है, फ्लेक्सिबल, जिसमें आप स्प्रिंग मोशन है, बेलोस मोशन है, एनिमेशन भी आप उसका दिखा सकते, उसमें से एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। और मटेरियल सर्च टूल बार है। नेक्स्ट हम जाते हैं कम्युनिकेट क्लियरली। सो सॉलिडवर्क्स 2020 में एक मार्कअप टूल फॉर द नॉन टच डिवाइसेस इंट्रोड्यूस है कि मुझे कोई भी मार्कअप दिखाना है। ओके, अगर मैं कोई सब असेंबली लेता हूँ, ओके, सो यहीं पे मैं कमांड में सर्च करूँगा मार्कअप। ओके, एंड जो भी आपको मैसेज कन्वे करना है कर सकते हैं, जैसे कि जस्ट अ मिनट कुछ। ओके, सो यहाँ पे मैं मार्कअप एनेबल करूँगा, मुझे ड्रॉ करना है एंड सिलेक्ट, और इसी के साथ मैं यहीं पे कोई नोट भी ऐड कर सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पे ओके, सो जो भी मार्कअप हमने ऐड किए हैं वो यहीं पे डायरेक्ट सेव हो जाएंगे। सो आई थिंक बहुत सारी बार टेक्स्ट आ गया, एक क्लियर मार्कअप लिख देते हैं। प्लीज चेक स्लॉट साइज। ओके, सो ये मार्कअप पर्टिकुलर वो ओरिएंटेशन व्यू में सेव रहेगा। ऐसे ही अगर आपको मार्कअप को देखना है तो आप राइट क्लिक करके ओरिएंट कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर आपको किसी को शेयर करना है कि आप ये मार्कअप कैसे शेयर कर सकते हैं, तो राइट क्लिक, एक्सपोर्ट मार्कअप ऑप्शन। सो अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है, इमेज या PDF फाइल, जैसे भी आपको इसका एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं PDF सिलेक्ट करूँगा। सो मेरी एक मार्कअप की PDF फाइल क्रिएट हो गई है। सो ये रही मेरी मार्कअप की PDF फाइल। सो
इससे मैसेज कन्वे करने में या फिर कोई भी चेंजेस हाईलाइट करने में काफ़ी इजी होगा। पहले ये फैसिलिटी सिर्फ टच डिवाइसेस में थी सॉलिडवर्क्स 2019 में, लेकिन अब 2020 से ये डायरेक्ट माउस से भी, आप कर्सर से भी डायरेक्ट मार्कअप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारा सॉलिडवर्क्स ई ड्राइंग एनहांसमेंट VR। सो करंटली VR और AR काफ़ी डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है। आप पूरा अपना मॉडल VR हेडसेट में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं सॉलिडवर्क्स ई ड्राइंग की हेल्प से। सो मुझे सॉलिडवर्क्स ई ड्राइंग 2020 ओपन करना है और यहीं पे मैं ओपन करूँगा मेरी असेंबली फाइल। करंटली यहाँ पे कोई VR हेडसेट है नहीं, इसलिए विद इन ई ड्राइंग आपको ये पूरा विजिबल होगा। यहाँ पे आप एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं, फ्लोर कलर चेंज कर सकते हैं, लाइटिंग इफेक्ट है, और जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं। सो ये भी एक काफ़ी इफेक्टिव टूल है अपनी प्रोडक्ट को किसी कस्टमर को प्रेजेंट करना है तो। अगर VR हेडसेट हो, पूरा आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा। सो आप देख सकते हैं कितना क्लियर और रियलिस्टिक दिख रहा है। सो एक ये VR फैसिलिटी सॉलिडवर्क्स ई ड्राइंग 2020 में एनहांसमेंट है। So moving on to next for the SolidWorks drawing. So again डिटेलिंग मोड एक ये नया मोड है जिसकी मदद से आप ड्राइंग्स काफ़ी क्विकली ओपन कर सकते हो सॉलिडवर्क्स 2020 में। सो एक मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाऊंगा ड्राइंग। सो डिटेलिंग मोड किस लिए है कि आपको आपकी ड्राइंग सीट में बहुत सारे एक पर्टिकुलर ड्राइंग फाइल के अंदर बहुत सारी सीट्स है, ड्राइंग सीट, और आपको सिर्फ माइनर चेंजेस करना है। ज़्यादा कुछ चीज़, एक दो डायमेंशन आपको एडिट करने हैं, कुछ रिमूव करने हैं। सो उस कंडीशन में डिटेलिंग मोड काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो डिटेलिंग मोड में क्या होता है कि बैकग्राउंड में एक मॉडल लोड नहीं होगा आपका, डायरेक्टली वो सिर्फ एज ए काइंड ऑफ ग्राफिक प्रॉपर्टी इंपोर्ट करेगा। जैसे कि ये मैंने ड्राइंग ओपन कर रहा हूँ, सो यहाँ पे एक मोड में न्यू मोड ऐड हो जाएगा, डिटेलिंग मोड। सो इसका रिक्वायरमेंट ये है कि ड्राइंग सॉलिडवर्क्स वर्जन 2020 में बने हुए होने चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है। ओल्डर वर्जन के ड्राइंग ये मोड सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे आप उसको ड्राइंग को सॉलिडवर्क्स 2020 में ओपन कर रहे हो। सो यहाँ पे वो हेल्प मेनू आ जाए कि आप एनोटेशन ऐड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, एंटिटीज क्रिएट कर सकते हैं, डायमेंशन ऐड और एडिट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड मेरा पूरा ड्राइंग ओपन हो गया है। सो यहाँ पे मैं किसी भी डायमेंशन को डिलीट कर सकता हूँ, कोई भी न्यू डायमेंशन में ऐड भी कर सकता हूँ। इसमें मैंने स्मार्ट डायमेंशन दे दी है। ओके, कोई एनोटेशंस आपको ऐड करने हो, नोट्स ऐड करनी हो, सो आप क्विकली ये चेंजेस कर सकते हैं। ओके,
एंड इसको फिर आप सेव भी कर सकते हो पर्टिकुलर पूरी ड्राइंग फाइल को। सो एक काफ़ी फास्टर वे हो गया। आपको अगर एक फाइल के अंदर काफ़ी बहुत सारी ड्राइंग शीट्स है तो इजीली आप ओपन करके एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट है सिमिलरली फॉर सेक्शन व्यू। सो सॉलिडवर्क्स 2020 में सेक्शन व्यू में भी आप कॉल आउट दे सकते हो। अगर आपने किसी होल का क्रॉस सेक्शन व्यू क्रिएट किया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कि एक मैनीफोल्ड है, सो उसका मैंने ड्राइंग क्रिएट किया है, तो यहाँ पे मैंने सेक्शंस लिए है पर्टिकुलर होल से। सो सॉलिडवर्क्स 2020 में सेक्शन व्यू में भी वो पूरा होल कॉल आउट दे सकता हो। सो इससे एक्सप्लेनेशन में काफ़ी इजी होगा कि ये मेरा साइड कट है तो ये उसका होल कॉल आउट है। प्रीवियसली क्या होता है, सिर्फ हम टॉप व्यू से ही होल कॉल आउट दे सकते थे, लेकिन सॉलिडवर्क्स 2020 में हम क्रॉस सेक्शन में भी होल कॉल आउट दे सकते हैं। क्रॉस सेक्शन है, डिटेल व्यू है, ब्रोकन आउट सेक्शन है, सो ये सब में हम होल कॉल आउट क्रिएट कर सकते हैं। अगेन सिमिलरली ड्राइंग में भी मार्कअप फैसिलिटी है, आप यहाँ पे भी मार्कअप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मार्कअप में जाऊँगा, सो पेन कलर सिलेक्ट किया एंड हाईलाइट कर दिया। अगेन इस मार्कअप को मैं शेयर कर सकता हूँ सिमिलरली पीडीएफ, इमेज, किसी भी फॉर्मेट में। सो यहाँ पे हम सेव कर देते हैं इसको इमेज फॉर्मेट में। सो दिस इज kind of very much faster and a convenient way to pass on the information down the line. So here you can see ये मेरा exported markup as a image format create हो गया। So these are the some new enhancement in this SolidWorks 2020. First is the LDR edit mode. LDR mode में आप एडिटिंग कर सकते हैं। फिर फ्लेक्सिबल पार्ट, फिर सर्च टूल मटेरियल के लिए मटेरियल लाइब्रेरी में आप डायरेक्टली कोई भी मटेरियल सर्च कर सकते हैं। फिर मार्कअप फॉर नॉन टच एनेबल डिवाइस, फिर वीआर फैसिलिटी ई ड्राइंग में, और ड्राफ्टिंग में डिटेलिंग मोड, जिससे आप कोई भी ड्राइंग कितनी भी सारी सीट्स हो विद इन फ्यू सेकेंड्स आप वो ड्राइंग ओपन करके क्विकली एडिट कर सकते हैं। अगेन मार्कअप आप ड्राइंग में भी इंसर्ट कर सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ है, इमेज है। एंड दी होल कॉल आउट आप अप्लाई कर सकते हैं सेक्शन व्यू, डिटेल व्यू और ब्रोकन आउट सेक्शन में। सो ये कुछ एनहांसमेंट है in SolidWorks 2020. Now we are open for the Q&A session. So I will go through the question in the chat how to enable LDR mode. So LDR mode is not a option. आप कोई भी फाइल जब ओपन करेंगे SolidWorks में, so आपको ओपनिंग में एक टूल अवेलेबल होगा। यहाँ पे मैं अगर डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ तो वो रिजॉल्व मोड या फिर सेटिंग्स के हिसाब से लाइट वेट मोड में ओपन होगा। लेकिन अगर मैं ये विंडो को एक्सपांड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे LDR मोड मिलेगा। सो LDR मोड मुझे सिलेक्ट करके यहाँ पे एडिट असेंबली एनेबल करना है, तो वो एडिटिंग ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। व्हाट इज द साइज ऑफ द असेंबली? जस्ट अ मिनट, इट्स okay,
currently assembly size 10 MB, सिर्फ assembly file size, and complete document 160 MB. What is the workstation specification? Bipin's okay. So currently specification for my workstation इसमें है i7 9th generation 32 GB RAM and 4 GB NVIDIA Quadro graphics card. Okay, some assembly I work on have 1000 to 2000 parts, but large assembly mode doesn't help much. So पिपिन सर इसमें आपको असेंबली की तरफ मतलब एक बार इवेल्युएट करना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग मोड है, फिर परफॉर्मेंस है, सिर्फ जो LDR मोड है, लाइट वेट मोड है, उससे अफेक्ट नहीं करते. अंदर और भी सेटिंग्स है आते हैं, जैसे कि इमेज क्वालिटी सेटिंग्स है, कितने कॉन्फ़िगरेशन है. सो ये सब भी एक बार चेक करना पड़ता है. Okay. So any another question regarding SolidWorks 2020 जो भी अनाउंसमेंट इसमें दिखा है? और लेटर ऑन आप मुझे इस ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं. कि हाउ टू रिमूव ओवर डिफाइन एरर ऑफ बेल्ट. एक्चुअली वो पार्ट या असेंबली देखना पड़ेगा, मेट्स किस सीक्वेंस में दिए, कौन कौन से मेट दिए. देखे बिना तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है वो एरर्स रिमूव करने के लिए. हाउ टू सेट डिफॉल्ट नेम बॉक्स फॉर कंपनी. कौन सा नेम बॉक्स? ओके, डिफ़ॉल्ट नेम बॉक्स टाइटल ब्लॉक. ओके मिस्टर हर्ष, आप मुझे मेल कर सकते हैं ये क्वेरी, तो मैं आपको मेल थ्रू पे एक वीडियो लिंक भेज दूंगा. उसमें पूरा इंस्ट्रक्शन है कि आप कैसे टाइटल ब्लॉक डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर सारी प्रॉपर्टी लिंक कर सकते हैं, कस्टम प्रॉपर्टी है. सो वो मैं आपको मेल पे लिंक शेयर कर सकता हूँ. आप मुझे अपनी क्वेरीज ईमेल कीजिए ये ईमेल आईडी पे. So due to time constraint, we have to end the session over here. So thank you very much for joining this webinar. You can mail your query to me anytime. I will revert back you shortly. So thank you, and stay at home, stay safe, follow the government instruction to prevent this COVID-19. Thank you very much.